So hello friends, this is Ashutosh here. Welcome back to my channel. Last video we have already seen the first part of the chapter, that is the where, when and how. Today we are going to see the next part, that is we will see the first nationalism. So and a price against the colonialism. सो जो है विद्रोह जो है चालू कैसे किया है कॉलोनिज्म के खिलाफ में वो हम अभी देखेंगे. To French Revolution of 1789 to 92 with the basic ideas of liberty, equality, fraternity inspired the people all over the world. So French Revolution that is started from the 1789 to 1992 with the basic idea is whatever we are doing, so we want equality, fraternity for the inspiration the people that is gone. मीन्स उस टाइम पे ये सब चीज़ें होती थी, यानी कि उनको एकजुट लाया गया रिवॉल्यूशन करने के लिए. बिकॉज वी नो डैट वी वांट, सपोज वी वांट सम रिवॉल्ट अगेंस्ट सम पीपल, some rules, so we have to be one unity, then it will be possible to fight with any problem. So this type of situation that was happened here in the French Revolution, that was between 1989 to 92. So there is some basic ideas for the all things, that is the basic idea of that is liberty, equality, fraternity, that is the main basic ideas was there. So inspire that was idea, inspire the people, means all over the world, पूरे वर्ल्ड के जो पीपल से उस पर इंस्पायर हुए. ठीक है. द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शोड बी सीड्स ऑफ नेशनलिज्म. तो अमेरिका वार में जो है उन्होंने कुछ बीज बोए, किसके लिए? राष्ट्रवाद के लिए. जो भी है राष्ट्र में आना चाहिए, सब राष्ट्रवाद होना चाहिए, उसके लिए कुछ बीज उन्होंने बोए हैं, यानी कि चुगली बोलते हैं उसको, एक प्रकार के उन्होंने चुगली डाले हैं वहाँ पे, यानी कि उकसाया है लोगों को. ठीक है. Autocratic rules of the monarch were thrown away and democratic government were established in many parts of the world. Autocratic rules of monarch means we have seen in our television and whatever the shows are there in our television, we know the history. Whatever the rules is of a monarch means साम्राज्य, जो जैसा राजा और महाराजाओं का साम्राज्य हुआ करता था, कि वो किसी पे भी अत्याचार करते थे, कुछ भी करते थे, उनकी हुकुमशाही चलती थी. जैसे कि ब्रिटिश की हुकुमशाही एक प्रकार की हुकुमशाही हो गई थी. सो ये सब हटाने के लिए उन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित की पूरे अलग अलग वर्ल्ड में. ठीक है. ये सब परिस्थिति वर्ल्ड में थी, पहले पूरा ऐसा वर्ल्ड में था. यू नो डैट वेरी वेल. द कंट्रीज अंडर foreign domination begins to struggle to overthrow foreign rule and establish itself as a nation. So there are a lot of countries, they start the struggle for their democratic government and they establish itself, means एक संगठन चालू की होगी और establish की उन्होंने एक नया नेशन establish, खुद से एक नया नेशन स्थापित किया. ठीक है. In 19th century there were struggle for the freedom and national unification in Germany, Italy, Greece, Poland, and other countries. Other European countries are there. They participated in that revolt. Again, that is colonialism के खिलाफ उन्होंने एक संगठन बनाई और जिसमें बहुत सारे देशों के countries इसमें joined. There is the example, that is Germany, Italy, Greece, Poland, and other European countries were came together for against the colonialism. So friends, note that Germany and Italy were the first nation to be united. जर्मनी एंड इटली जो थी, जो पहली नेशन थी कि जो सबसे पहले उन्होंने भाग लिया था, सहभाग लिया था सब इसमें, किसी को लड़ने के खिलाफ में. ठीक है. मेनी नेशंस लॉन्च देयर स्ट्रगल ऑन दिस लाइन्स एंड गेन इंडिपेंडेंस इन 20th century. सो उनकी जो रिवॉल्ट है, उनका रंग लाया, रिवॉल्ट मीन्स विद्रोह, सो उनका रंग लाया और उनको इंडिपेंडेंस मिला कब? 20th century में. मीन्स दे लॉन्च देयर नेशन, इट्स मैंने कहा एक नेशनलिज्म उन्होंने लॉन्च किया, मतलब खुद का एक जो है गवर्नमेंट स्थापित की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित की उन्होंने खुद के हिसाब से. कब? उन्हें पूरा पहले एकजुट आए सब लोग, उसके बाद ये सब कुछ हो सका. ठीक है.
So thus they struggled for the nationalhood tied by common geographical language and desire to have a democratic setup which become a potent factor in shaping the history of the world during the 19th and the 20th century. The new waves of nationalism that reached the Indian shores shook the very foundation of the British Empire in India, paved the way for the down of the independence. So what happened, इसका भी impact जो है इंडिया पे भी पड़ा है, क्योंकि वट एवर एट दैट टाइम द ब्रिटिश वर रूल्ड ऑन अस, सो इसका बहुत भारी इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल पे पड़ा, यानी कि उनको बहुत भारी बड़ा नुकसान हुआ कि अभी ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इंडिया में इस सॉरी रिवॉल्यूशन से। इस रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ कि वो उनको भी लगा कि अभी आज़ादी मतलब इंडियन लोगों को लगा कि अभी आज़ादी हमें मिल सकती है, वहाँ से एक आज़ादी की चिंगारी शुरू हुई। So next we will see about, so guys next we will see, so now we will see the sources. An introduction to the sources. The source, the word source refers to any piece of writing, books, manuscript, travelogues, inscriptions, coins, monuments, or any evidence of the particular period. By studying which the historian reconstruct history, the sources can be in many forms. They can be manuscripts, official documents, films, or coins, monuments, or any other material which tell us something about the past. Sources like the official record give limited information, that is the information that was to be conveyed to general public. Other sources of history includes the diaries of peoples, pilgrims, accounts, and booklets, among many others. Some different sources of history are given below. So we know that, guys, we have seen our history. We can read a lot of books of history. So there are so much type of evidence we know that about the history, that some coins are there, books are there, so a lot of things are there because they was writing all things. That's why we know all things about it. So let's we see the one by one that sources. First is a historical monument. The historical monuments are a living example of history. Some of the historical monuments include the India Gate, the Parliament House, the Birla House, and others. Delhi and all the headquarters of the princely states, etc., are associated with the great political events. So they are just we know that the historical monuments means some of the historical monument that is just like India Gate, बहुत बड़ा historical monuments है, पार्लियामेंट हाउस है, बिरला हाउस है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हाउस है, बहुत सारे पार्ट्स है, मॉन्यूमेंट्स है हिस्टोरिकल कि एक चीज़ें हिस्ट्री बना दी है उन्होंने कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। ठीक है, दिल्ली एंड हेडक्वार्टर्स हो गया, प्रिंसली स्टेट्स हो गए जो राजा और महाराजा के स्टेट्स थे वो हो गए। सो दिस इज द वाई दिस इज हैपन बिकॉज द पॉलिटिकल इवेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे इंस्क्रिप्शन। Words or writing in books or carving are terms as an inscription. Sorry. Inscription. Words or writing in books or carving are terms and inscription. For the example, Ashoka pillars inscription gives us information about his time. So carving means nakashiya, jo we can say the map, right? So this tells us about the some information about the some people. So नकाशिया जो होता है तो हम लिखते थे वर्ड्स, लिखते थे कुछ अलग डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते थे, मतलब राइटिंग डिफरेंट होती थी उस टाइम में, हर चीज़ अलग अलग होती थी. So guys, there is a very important things to know about, because in the we can see in the Ashoka pillars in there also there are the various type of languages they are wrote. मीन्स अगर हम कोई पुराना पत्थर देख ले तो उसमें अलग टाइप की लैंग्वेज लिख के रहती है. अभी भी आप भी देख सकते हो, अभी भी देखते हैं संस्कृत होती है, यानी अलग अलग टाइप की लैंग्वेज होती है, यूज़ होती थी. तो अलग अलग नक्काशियाँ भी यूज़ करते थे वो लोग, बुक्स यूज़ करते थे, राइटिंग वर्ड्स यूज़ करते थे, बहुत सारे वर्ड्स है वो सब यूज़ करते थे पहले के ज़माने, राइट. सो नेक्स्ट विल सी कॉइन्स एंड सील्स. The coins, that is a piece of flat metal used as mean of money. ठीक है, मनी के लिए काम आता था. Seal means an emblem having the inscription or the pictorial writing. तो देखते हैं कैसा क्या होता है.
The coins of the particular era tell us about a monetary transaction made during that era. Monetary, that is the economic condition, income source, we can say that. For example, the coins of various countries that is depicted on each coin. The study of coin is called as a numismatic. numismatic सिक्का, सिक्के के तरीके होते हैं अलग अलग टाइप के, छाप जो बोलते हैं एक प्रकार की, वो होता है। तो पहले के ज़माने कॉइन्स की ज़माना होता, अभी नोट का ज़माना आ गया दोस्तों। तो नोट ही हर जगह पे नोट चलती है। तो पहले कॉइन्स आते थे, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्य के, अलग अलग देश के टाइप के कॉइन्स होते थे पहले। तो वो यूज़ करते थे, आपको टीवी में आपने देखे होंगे तो आपको पता भी होगा। द सील्स, नाउ विल सी द सील्स। The seals could be rectangular, circular and cylindrical in shape and were used for the various purposes. Yes sir, yes guys. तो seals जो है रेक्टेंगुलर शेप में रहते थे, सर्कुलर रहते थे, सिलेंड्रिकल रहते थे। अभी सील्स क्या होते हैं, जो आपने मोहर जो बोलते हैं, मोहर यानी कि जो पहले ऐसे राजा ये लोग ऐसे एक लेटर देते थे, ऐसे कपड़े पे लिख के लेटर लिखते थे इंक से, और उसके उसके ऊपर उनका जो स्टेट का जो मोहर लगाते थे, दैट इज कॉल्ड सील्ड सील्स। ओके, so these seals portray the culture and the civilization of the period of which they belong. They even show the commercial relation, religious beliefs, script, genius of an artist and lifestyle of the people in that era. For example, the merchant also used seal as stamp. तो सील्स के कुछ ये दिए हैं, मॉडर्न सील्स यहाँ पे दिए, तो ये मॉडर्न सील्स हो गए गाइस। एंड कॉइन्स भी दिए, आप देख सकते हो कि ये मॉडर्न कॉइन्स है, इस पे दिए हैं, तो यूएसए के दिए हैं यहाँ पे। सो हमारे भी होते थे कॉइन्स। तो अगर आपके दादाजी वगैरह हो गए तो उसको आप उनको पूछ सकते हो, तो उनको अच्छे से पता होगा ये चीज़। तो सील जो होती है, जो मोहर होती है, जो कोई भी अगर संदेश हमें देना पड़ता था पहले, तो हम उसको सील मारते हैं, यानी कि ये स्टेट का ये संदेश है, ये स्टेट का ये मैसेज है करके, ठीक है। तो उससे पहचाना जाता था। तो उस टाइम पे जो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ गाइस कि उस टाइम पे जो ये मोहर होती थी, दैट्स वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर देयर स्टेट्स, फॉर मीन्स हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व देते थे। अगर वो गुम गई या किसी दूसरे के हाथ में लग गई तो बहुत बड़ा इशू भी होता था। सो मैन्युस्क्रिप्ट, the manuscript are the collection of the original written documents, texts and script which are informative and useful in many ways. तो मैन्युस्क्रिप्ट दैट इज द कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल रिटन डॉक्यूमेंट्स है, टेक्स्ट है, स्क्रिप्ट्स है। अभी जो हम कंप्यूटर पे करते हैं, पहले वो ऐसे लिखते थे, ग्रंथ वगैरह जो है लिखते थे, तो दैट इज कॉल्ड अ मैन्युस्क्रिप्ट। सर्वे देखेंगे। The British believed that if a country had to be administered effectively, then surveys had to be conducted properly to map the entire territory. Apart from topography, soil pattern, vegetation, etc., surveys also assist in understanding the entire history of a country. Taking this advantage into consideration, the British conducted a number of surveys in various parts of the world, just like archaeological, botanical, zoological, forest, revenue, census, survey, etc. So guys, survey is a very important part. So British also believe in the survey. That's because before they were come into a country, so they survey. उन्होंने पहले सर्वे किया था कंट्री में कैसे लोग हैं, कैसा क्या है, कैसे किस तरह से है। तो उनको पता चला कि इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा दयालु है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, सब पे भरोसा कर लेते हैं। सो उन्होंने एक धीरे 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 उनका साम्राज्य स्थापित किया हमारे इंडिया में, और उन्होंने रूल किया। और फिर उन्होंने आपको तो पता है बहुत सारे जुल्म किए लोगों पे, ये सब चीज़ें हुई। तो सबसे पहले सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इफ़ यू अगर सपोज कोई बिजनेस डाल रहे हो, कुछ चीज़ें डाल रहे हो, तो सर्वे वहाँ का करना, जो एरिया पर्टिकुलर एरिया है उसका सर्वे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। सो द टेकिंग दिस एडवांटेज इनटू द कंसिडरेशन, ब्रिटिश कंडक्टेड नंबर्स ऑफ सर्वेज इन वेरियस पार्ट। ब्रिटिश लोगों ने बहुत से कंडक्टेड किए, नंबर्स ऑफ सर्वेज कंडक्ट किए थे पूरे वर्ल्ड में। लाइक आर्चोलॉजिकल, जो पुरान के काल के जो लोग होते हैं, तो दैट इज आर्चोलॉजिकल। बॉटनिकल, देन वनस्पति विज्ञान के वनस्पति जो होते हैं वो। जूलॉजिकल होते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट के बारे में भी उन्होंने सर्वे किया। रेवेन्यू, राज्यों में किया, कैसे कैसे राज्य से कैसे कैसे नहीं है।
सेंसस में का जनगणना के बारे में देखा है कि कितनी जनसंख्या है, क्या नहीं है, कैसा नहीं है, तो उनके ऊपर सबने उन्होंने स्टडी किया. So next we see the accounts of foreign traveler and chronicles. So guys, the many visitors, foreigners gave wonderful accounts of rural society's lifestyle. So many visitors are there. And एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा जो देश है बहुत ज़्यादा फेमस है. बहुत से फॉरेन्स जो है हमारे देश में विजिट करते हैं और ट्रैवल मीन्स एक शांति के लिए भी इधर आते हैं, कुछ एंजॉय करने के लिए. गोवा है, बीच है, ताजमहल है, आगरा है. आगरा है, ताजमहल है, मीन्स आगरा सॉरी आगरा में ही ताजमहल है. सो ये सब चीज़ें हैं, ये एक तरह की जुड़ के है. तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ें जो है, जो हमारे इंडिया में बहुत सी खूबसूरती है, तो लोग उसका आनंद लेने के लिए इंडिया में आते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, Magazine gave a beautiful account of A.O. Hume Henry Vivian, Darozia, and Annie Besant. So these are the examples. These are the people so who traveled a lot. So इतना ही याद रखना है, इसको ज़्यादा याद मत रखिए. So अब नेक्स्ट देखेंगे biographies and books. Let us friend in biographies and books is a very important factors for the of history, because this is the reason that we are now studying history in deeply, and we are going to see all things in deeply. So this why this is of the just because of the biography. सो अ बायोग्राफी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, यानी बायोग्राफी का इंसान के पूरे जीवन चरित्र पे लिखी जाती है. सो बहुत ही महत्वाकांक्षी, जो बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट होता है लाइफ में हो, कि कोई हमारे बारे में लिखे, तो सबसे बड़ा ब्यूटीफुल मोमेंट वही होता है. सो बहुत सारे है, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है, हरिश्चंद्र है, ज्योतिबा फुले है, महात्मा गांधी, जो बड़े बड़े बहुत राजा लोग हैं, बहुत से लोग हैं कि उनके फैक्ट के बारे में लिखा है, सबकी बायोग्राफी है. सो बुक्स आल्सो आर देयर. अभी जैसे रामायण दिखाते हैं, ग्रंथ जिसे बोलते हैं हम, ग्रंथ है, सबने लिखे हैं. सब दिस आर द गिव्स अ इमोशनल अटैचमेंट टू द बिलीफ्स एंड आइडियाज एंड एक्सपीरियंस फॉर द लाइफ. So we have to also get something about from them. So that's why the books are very important for the reading. So we have to also read a lot of books of the history, and it's not boring. It's a very if you read books and you will go the deep in that, so you might be very what we can say, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा पढ़ना और बहुत ही उसमें घुस जाओगे आप. सो प्लीज़ एक बार ट्राई करके दीजिए, हिस्ट्री बहुत आपको अच्छी लगेगी. सो देन देखते हैं कि नॉवेल्स आर ऑल्सो फेमस. दे आर द फेमस नॉवेलिस्ट, दैट इज द डिक्कन फील्डिंग, मुंशी प्रेमचंद. दैट इज अब नाम से पहचान होती, इंडियन है. So takes its own world where they portray the impact of the portray means the picture. If we are clicking the picture, okay, social issues and the industrial revolution. So they wrote a lot of novels on the basis of the social issues, industrial revolutions. ऐसे बहुत सारी उन्होंने इस पे नॉवेल्स लिखे हैं. दिस आर द मेंबर्स. तो इतना हमें याद रखना है. बायोग्राफी और बायोग्राफी लिखने अगर बोल दिया है तो इतना हमें थोड़ा याद रखना है. ठीक है गाइस. सो लेट्स वी सी पेंटिंग. सम आर्टिस्ट हैव rendered various aspects of history of their times by means of art and paintings. Paintings of Raja Ravi Verma, the famous Indian painter of the 20th century, underline guys, portray Indian tradition in his art. Similarly, Jacques Louis David, a French painter, has wonderfully depicted the tennis court art during the French Revolution. So guys, the painting is a very important part in our life, and we have to be a like to paint painting. So जो कि है पेंटिंग जो है राजा रवि वर्मा जो है, बहुत सारे हैं, रजा साहब है. सो ये जो है बहुत इंडियन पेंटर्स है. रजा साहब है, तो वो भी बहुत बड़े पेंटर हैं इंडिया के. जो ज्योमेट्रिकल पेंटिंग होती है, शेप्स होते हैं, तो इस तरह की वो पेंटिंग बनाते थे रजा साहब.
सो बहुत सारे पेंटर्स है, जैसा कि जैकिस लिव्स डेविड है जो फ्रेंच पेंटर है। तो ये सब कब हुआ था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हुआ था। सो द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट the British government introduced the system of writing in each department so that all work could be done smoothly. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस किया था कि सिस्टम लाया था राइटिंग का इन हर एक डिपार्टमेंट में। तो वो सब वर्क एकदम स्मूथली चला था। इन द कॉलोनियल इंडिया द मेमोज लेटर नोट्स रिपोर्ट्स रिटर्न इंस्ट्रक्शन एंड directive were sent by the top level British official to lower level which provide the valuable information to historian. The British also felt the importance of these official documents, hence they preserve them carefully in archive, thus their sources play vital role in studying history. So guys, official documents, so why it is important? So the British government that into the system, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम लाया कि राइटिंग, सब चीज़ का राइटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। इफ़ यू आर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, तो राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिस्टम लाया कि राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने दिया राइटिंग को, और हर एक डिपार्टमेंट ने हर एक चीज़ जो है अच्छे से काम करने को बोला है कि हर चीज़ हमें राइटिंग में लिख के रखना है, यानी कि डॉक्यूमेंट उसके राइटिंग में हमें चाहिए कुछ भी चीज़। तो ये जो चीज़ थी, जैसे कि मेमोस हो गया, लेटर्स हो गया, नोट्स हो गए, कोई इंस्ट्रक्शन हो गया, किसी को कुछ देना है, कुछ भी चीज़ है, तो राइटिंग में ये एक ऑफिशियल जो है चीज़ हमें चालू की थी, हायर लेवल से तो लोअर लेवल से। तो कैसा है ये सब चीज़ें, कैसे है कि हमें हमारा सब खत्म होने के बाद भी ये वैल्यूबल रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है कि हम कभी भी कुछ भी देख सकते हैं, ले सकते हैं और जान भी सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस दैट हिस्ट्री वी हैव सीन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड वी हैव टू सी एट द बेसिक पॉइंट, मतलब धीरे धीरे पॉइंट्स हमें सोचने, जरा ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी से क्या है, इसमें 2-3 लोग हैं उसका नाम देना है और राइट डाउन करना है। सिंपल थिंग है गाइस, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही लिखना है, ज़्यादा कुछ इतना सोचना नहीं है और लिखना नहीं है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और लैंग्वेज लिखना चाहिए, तो यू कैन राइट एनीथिंग। सो आई होप you might be understood and you enjoy it lot, एंड जिसको बोर मारता है हिस्ट्री, तो आई होप कि उसने भी मज़ा किया होगा हिस्ट्री पढ़ते समय। तो पढ़ना ज़रूरी है, आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा। सो सो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। सो जिसको भी कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो यू कैन कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल if you like this video. So thank you so much. Stay home and stay safe.